Okay, so ladies and gentlemen, yesterday what we talked about is enterprise networking. We talked about the routing. We talked about the static routing. We talked about the dynamic routing. We talked about the intra routing protocols and uh, exterior routing protocols, which we may call as the inter-domain between the domains or intra-domain. I talked about in the intra-domain routing protocols, the two. One is the link state, another one is the distance vector. I explained the difference between the two, and then I told you that the distance vector routing protocols uses the algorithm, which is the Bellman-Ford algorithm. And the examples are RIP1, RIP version 2, and interior gateway protocol. While the link state routing protocols, the examples are the OSPF, and it uses the Dijkstra's algorithm. And the other example is ISIS, right? Then because the main emphasis of this course is about the link state routing protocols and especially the OSPF routing protocol, therefore we talked about the link state. I explained what mean by the link state. I told you that by link means the interface of a router, because definitely routing is related to the routers, and that's the reason link is related to the interface of the router, while the state means, for example, the prefix between the IP address related to this interface, the prefix then between the subnet mask and the cost. So this is the state of the link. So it means that shows that the link state routing protocol talks about or find the best path from any source to any destination by using the state of the links. The decision will be based upon the state of the link, in short. Then I explained to you different packets which are used in the link state routing protocol, which is OSPF. I said that the first packet is the hello packet, which is used to find the neighbors, and based upon this, what type of table is obtained? The table is a adjacency table or database, which may I call it the neighbor table. Then is the database description packets, where you send the complete description of your link states to your neighbors, to the others, and through this the user, between the user means the router, develops its link state database, which is exactly the topology of the network, or may I, in the normal word, I may call it, it is like a map. It is like a map. ठीक है? फिर मैंने बात की कि मैप तो हमारे पास आ गया. मिसाल के तौर पे आप लोग जाना चाहते हैं किसी भी शहर में, लाहौर जाना चाहते हैं, आप वहां किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं, तो यू हैव द मैप, बट some algorithm will be like the Google map. Some algorithm will be used upon this map to give you a best path from the source to the destination. It means from your place up to the destination. And that algorithm is the Dijkstra's algorithm. And based upon, after the output of the Dijkstra algorithm is the forwarding database, which the router uses to send its information. Then, ladies and gentlemen, we talked about the second part, which was the page, and all of this has been shared with you. Yes. So I told you yesterday that whatever the routers share with one another, definitely what they share, they share the state of the link, and that the state of the link, when one router shares with others, is called the advertisement. That is called the advertisement. So that's the reason the terminology is link state advertisements, LSA. And today the objective is to study the different types of LSAs, starting from type 1 to type 8. The type 1 is called the router LSA, type 2 is called the network LSA, type 3 summary LSA, type 4 is the summary autonomous border router LSA. The 5.1 is the autonomous system external LSA. This is autonomous system border router LSA. I will explain the difference between all of them.
autonomous system external LSA, multicast OSPF LSA, no so stubby area LSA, and finally external attributes LSA for BGP. So these are some of the LSAs which definitely the routers share with one another. Okay, then I explained further before going into the different explaining these types of the LSAs. I explained to you that if there are less number of nodes, you may form a single area. So you will call it a single area, and the OSPF is running on this area. Like I showed here, ladies and gentlemen, that it might be a single area. This might be a single area. And all the routers are running OSPF on them. So it will be a single area OSPF. But in normal cases, the networks are bigger and we divide it into different areas. And we call them multi-area network. And the OSPF running in such a scenario is called multi-area OSPF. Then I explained that there are different types of areas, like the backbone area, like the standard area, stub area, totally stub, no so stub. So these are the different types of the areas, right, ladies and gentlemen? इस बात समझ आ रही है यहाँ तक? Just it is the revision of what we covered yesterday. So I start with the types of the LSAs. See, one thing more I should explain, and then I should go to the definitely पिछले कुछ दिनों से हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमें पहले से नहीं आती, उस टर्मिनोलॉजी के साथ अपने आप को थोड़ा सा एक्वेंट करना चाहते हैं, ताकि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और इन चीज़ों की तरफ जाएं, जब हम स्किल्स को लर्न करने की कोशिश करें, तो अगर टर्मिनोलॉजी पता ना हो तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं. तो टू सेव अस, जस्ट द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको इन चीज़ों के साथ दोस्ती बना दी जाए. ठीक है? ओके. So ladies and gentlemen, I start with the first thing, and the first thing is that how आपको पता है कि LSAs, आपको पता है कि जब LSAs एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं तो इससे क्या चीज बनती है? लिंक. LSAs जब एक दूसरे के शेयर किए जाते हैं तो क्या चीज बनती है? एट द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट? लिंक स्टेट डेटाबेस. लिंक स्टेट डेटाबेस. ठीक है? डेटाबेस तो समझते हैं ना. जैसे मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में CMS के पास एक डेटाबेस है जिसमें आपके रिजल्ट्स महफूज है. इसी तरह यहाँ पे लिंक की स्टेट्स जो हैं वो एक डेटाबेस में स्टोर कर दी गई हैं, जिसको हम कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस. जस्ट थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह ये लिंक स्टेट डेटाबेस पॉपुलेट होता है. जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि CMS का डेटाबेस कैसे पॉपुलेट होता है, तो आप बता सकते हैं कि जी हम एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट बनता है, टीचर जो है वो ऐड करता है CMS की डेटाबेस पे, उसको फिर ऑपरेटर जो है या सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर चेक करता है, उसको फॉरवर्ड करता है, एंड देन फाइनली इट रीचेस टू दी CMS मैनेजर. ठीक है ना? तो यहाँ पर भी किस तरह ये लिंक स्टेट डेटाबेस पॉपुलेट होता है, that briefly I want to explain, and then I want to explain the types of the LSAs. ठीक है? तो ladies and gentlemen, जब भी कोई LSA किसी राउटर के पास बन जाता है तो वो क्या करता है? वो अपने, जैसे मैंने बताया आपको, वो उसको फ्लड कर देता है. फ्लड का मतलब है कि अपने नेबर को देगा, नेबर अगर अपने नेबरों को देगा, तो इस तरह ये पूरे नेटवर्क में पहुंच जाए. नाइस जी. इसका मतलब ये हुआ कि अगले स्टेप में क्या डिसीजन होना है? डिसीजन ये होनी है कि एंट्री चेक की जाएगी कि क्या एंट्री इन दी लिंक स्टेट डेटाबेस
में इस LSA की मौजूद है या नहीं, that decision will be checked and decision will be taken। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो बड़ी आसान बात हो गई। अगर नो है तो क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एंट्री LSA ऐड कर दी जाएगी लोकल लिंक स्टेट डेटाबेस। तो अगर नो है तो जिंदगी आसान, just you will add, the router will add, which means the OSPF protocol will add, इसका मतलब है to the link state database। ठीक है, और अगर जब आपने ऐड कर दिया तो आप इसके सोर्स को फिर क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, जिसको लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, LSA एक्ट। तो उसको आप एक्ट भेज देंगे कि जो आपने LSA मुझे भेजा मुझे मिल गया, और लाजमी तौर पर जब मुझे मिल गया इसका मतलब ये है कि मैंने उसको अपने डेटाबेस में ऐड कर दिया। ठीक है, जब आप एक तरफ एक्ट भेजेंगे और दूसरे एंड के ऊपर आप क्या करेंगे, यही LSA आप अपने पास रख लेंगे। Does it make, is it correct? आप ये LSA अपने पास रख लेंगे, इज इट राइट टू से? सर मेरा नेट का थोड़ा इशू हो गया था, ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। जी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने ये कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि किसी भी राउटर ने एक LSA बनाया। LSA क्या है, मैंने पहले बताया कि दिस इज द स्टेट ऑफ ए लिंक which you want to advertise with your network. What mean by LSA? The state of the link, and I explained what mean by the state. So that is sent to your neighbor. The neighbor will check whether this entry is available in this database, which is called link state database. Now, if the entry is there, इसका मतलब if yes है तो इस पे मैंने अभी बात नहीं की, अभी बात करता हूं। डेफिनेटली दो ही कंडीशन हो सकते हैं, ये यस होगा या नो होगा। अभी मैंने यस को छोड़ दिया और किधर चला गया, नो की तरफ चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब नो हुआ इसका मतलब नहीं है, तो लाजमी तौर पे आई शुड ऐड दिस एंट्री इनटू माय डेटाबेस। दैट द रीजन आई रोट हियर ऐड टू लिंक स्टेट डेटाबेस। जब आपने अपने पास उसको नोट कर लिया तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक्नॉलेज करें कि आपको ये चीज मिल गई है। तो आपने ये लिंक स्टेट एक भेज दी उस सोर्स को जिसने LSA आपको दिया था। ठीक, अब जब मैंने अपने पास LSA मेरे पास आ गया, मैंने अपने पास नोट कर लिया, आपका क्या ख्याल है मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे फ्लड कर देना चाहिए। हमने कहा ये फ्लडिंग पे काम करता है, यानी औरों तक पहुंचा देना चाहिए। You should send it to the others, ठीक है, अदर नेबर्स। तो हमें ये इसको, इस LSA को जो हमें रिसीव हुआ था, हमने इसको फ्लड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? जी अलीना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये फ्लडिंग ब्रॉडकास्ट है कि नहीं? जी, फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि जिस सोर्स से आया होता है उसके अलावा सबको भेजना। फ्लडिंग मींस कि जिस सोर्स से आपके पास चीज आती है उसके अलावा जितनी भी बाकी इंटरफेसेस हैं सब पे भेज दो। दिस इज कॉल्ड फ्लडिंग। लाजमी तौर पे आप जिसका LSA है उसको तो LSA नहीं देंगे ना, उसको तो जरूरत नहीं है, उसी ने तो आपको भेजा है। आप उसके अलावा बाकी सबको भिजवा देंगे। बात समझ आ गई? ओके, अगर बात समझ आ गई तो लेट मी कंटिन्यू। अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि इस लाजमी तौर पे जब डेटाबेस है, इसके मतलब लाइक ए मैप, इस मैप के ऊपर मैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम अप्लाई कर दूंगा। मैं इसके ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम अप्लाई कर दूंगा, यानी डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम इन अदर वर्ड्स अप्लाई कर दूंगा, और मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, मेरे पास फॉरवर्डिंग टेबल आ जाएगा और मेरा प्रोसेस एंड कर जाएगा। ठीक हो गया? इज इट फाइन?
उस्मान एंड एवरीवन, ये तो मैंने नो वाला सिलसिला चलाया। अब मैं यस वाला चला। याद रखो कि हर एलएसए का एक सीक्वेंस नंबर होता है, हर एलएसए का एक सीक्वेंस नंबर होगा। तो अगर मैंने एक हासिल किया एलएसए, तो वो पहले से मेरे डेटाबेस में था, तो मुझे चाहिए कि मैं चेक करूं कि उसका सीक्वेंस नंबर क्या है। मैं चेक करूं कि उसका सीक्वेंस नंबर क्या है। क्या उसका सीक्वेंस नंबर है तो सही मेरे डेटाबेस में स्कीम थी, लेकिन क्या उसका सीक्वेंस नंबर नया है? अगर नया है इसका मतलब दिस इज समथिंग न्यू अपडेट, न्यू एलएसए। और अगर ये ओल्ड है इसका मतलब है कि देन आई शुड, अगर सीक्वेंस नंबर आपने चेक किया और आपका सीक्वेंस नंबर ओल्ड है, यानी कि नो ओल्ड है, तो इसका मतलब है कि देन यू शुड सिंपली ड्रॉप दी एलएसए, यू शुड सिंपली ड्रॉप दी एलएसए, क्योंकि तो पुराना है, पहले भी आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये नया है, यस सीक्वेंस नंबर इज न्यू नॉट ओल्ड, तो फिर क्या करना चाहिए? आई विल सेंड, यानी इसका मतलब है कि सीक्वेंस नंबर इज हायर, इसका मतलब है कि सीक्वेंस नंबर, रिसीव सीक्वेंस नंबर इज हायर, इसका मतलब है कि ये नया है, तो आई विल सेंड ए सॉरी अगर सीक्वेंस नंबर डिफरेंट है, अगर नहीं है तो लाजमी तो ड्रॉप कर देना चाहिए, और अगर डिफरेंट है तो अगर सीक्वेंस नंबर हायर है तो क्या करना चाहिए? हमें एक अदद हमें इसको आगे जाके देखते हैं, इसको हमें एक लिंक स्टेट अपडेट भेज देनी चाहिए एंड देन डाउन कर देना चाहिए इस प्रोसेस को। लेकिन असल प्रोसेस ये है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आपका सीक्वेंस नंबर नया है, अगर आपका सीक्वेंस नंबर हायर है, तो आप यहाँ पे चले जाइए वापस, आप इस पॉइंट पे जहां मैंने निशान लगाया है, लेट इट बी कॉल नंबर 1, यहाँ पे अगर आपका सीक्वेंस नंबर नया है तो इसका मतलब कि नया एलएसयू आपको मिला है। अगर नया एलएसयू है, यस यहाँ पे लिखता हूं, अगर नया है तो एलएसयू आप इधर आ जाओ, उसको ऐड कर लो अपने डेटाबेस में, एक्नॉलेजमेंट भेजो, फ्लड करो, आगे एल्गोरिथम रन करो, ये बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन के नहीं? यस आ रही है समझ। सर ये जिस तरह अभी आपने बताया ना कि सीक्वेंस नंबर ऊपर तो हमने ये कर दिया है कि जब ओल्ड है तो वो तो ड्रॉप कर देगा, जब अगर सीक्वेंस नंबर न्यू है तो सर ये फिर ऐड टू डेटाबेस में चला जाएगा ना उसमें। Sure. सर ये अपडेट वाला जी वही बताता हूँ कि अगर आपको कोई ओल्ड मिल चुका हुआ है तो फिर आपके पास, इसका मतलब है कि आप जब कह रहे हैं कि ये ओल्ड है, अगर न्यू है यस है तो न्यू है, अगर नहीं है तो ओल्ड है। अगर ओल्ड है तो इसका मतलब आपके पास उससे अपडेटेड वर्जन है। जब आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ बात बताता है और वो आपको पहले से, आपको उससे अगली बातें भी पता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अपडेट कर दो कि नहीं उसके बाद तो ये भी हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा लिंक स्टेट अपडेट, कि आप अपने सोर्स को एक अपडेट भेज के उसके डेटाबेस को अपडेट करवा लें, ताकि आप जैसा वो भी अपडेट हो जाए। बात समझ आई एसन? जी सर। नाइस। तो ये तो था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि किस तरह आपका लिंक स्टेट डेटाबेस पॉपुलेट होता है। Okay, then we come to the types of LSAs, जो मैंने पहले कहा, which are type 1 to type 1 to type 8 है, इससे ज्यादा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट जस्ट मैं उठा रहा हूं। तो टाइप 1 को हम कहते हैं राउटर LSA,
ठीक है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगर आपका एक अदद एरिया है, उसमें जितने भी राउटर्स हैं उस एरिया में, ये एक दूसरे को अपनी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। उस एलएसए को कहते हैं राउटर एलएसए। इसको क्या कहते हैं? राउटर एलएसए। जिसमें ये क्या क्या बताते हैं? एक तो ये याद रखो, आईपी प्रीफिक्स यानी आईपी एड्रेस, आईपी प्रीफिक्स। और नेक्स्ट में आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसके अलावा ये लिंक टाइप भी बताते हैं, किस किस्म का लिंक है, किस किस्म का लिंक है। क्या ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है? क्या ये एक ट्रांजिएंट लिंक है फॉर एग्जांपल? तो इसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन जस्ट टू शो यू कि विद इन दी एलएस विद इन दी एरिया, जो राउटर एक दूसरे के साथ जो कि सेम एरिया का हिस्सा होते हैं, वो एक दूसरे को जो एलएसए भेजते हैं उसको कहते हैं राउटर एलएसए। देन कम्स टाइप 2, which is called network LSA. Type 2 network LSA. क्या कहते हैं? नेटवर्क एलएसए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास एक मल्टी एरिया नेटवर्क हो सकता है, मल्टी एरिया नहीं कहना चाहिए, मल्टी एक्सेस नेटवर्क। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है मल्टी एक्सेस। पॉइंट टू पॉइंट तो आप समझते हैं कि अगर ये एक राउटर है ये एक दूसरा राउटर है, तो दिस लिंक बिटवीन द टू राउटर इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। while in the multiple access क्या होता है कि मिसाल के तौर पे I have a router here, may I call it R1 connected to a switch, may I have another router R2, may I have another router R3, may I have another router R4 for example. Now these routers can talk to, it is not point to point, it is a multiple access network now. It is a multiple access router, मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क में, जहां पे दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? मल्टी एक्सेस नेटवर्क। आगे जाके आपको बताऊंगा कि इस OSPF नेटवर्क में मुख्तलिफ किस्म के राउटर होते हैं, जिसमें अभी मैं दो के सिर्फ नाम लेना चाहता हूं। एक को कहते हैं DR, आपने शायद सुना भी हो, और दूसरे को कहते हैं, एक को कहते हैं DR और एक कहते हैं BDR। एक को कहते हैं DR और दूसरे को कहते हैं BDR, where DR stand for designated router, DR stand for designated router, और राउटर जो मर्जी बोलते हो। जबकि BDR का मतलब है बैकअप डिजिग्नेटेड रूटर। तो मैं नया पेज ले लूं, ये पेज खत्म हो गया है। क्या मकसद है इसका? लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे अभी मैंने आपको मल्टी एक्सेस नेटवर्क बताया, याद रखो कि इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क में जितने भी राउटर हैं, किसी राउटर की प्रायोरिटी कह लो या आईडी कह लो, मैं राउटर आईडी कह लेता हूं, राउटर आईडी होगी या तो कल की क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में हम प्रैक्टिकली राउटर्स, मोस्टली दिस राउटर आईडी माइट बी द आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर।
or a certain other number, but it is a router ID, simple. So the router with the highest ID value becomes elected as a DR, designated router, and the one which is second highest becomes the backup designated router. समझ आ गई? यहां तक जब मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया कि डिजिग्नेटेड रूटर कहते कैसे हैं, लेकिन ये याद रखो मकसद इस डिजिग्नेटेड रूटर का ये है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने भी कहा, मल्टी एक्सेस नेटवर्क है तो इसकी इंफॉर्मेशन सब एक दूसरे की तरफ गिराएं, व्हाई नॉट एक डिजिग्नेटेड रूटर जो है वो सबकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और भेज दे, और जब वो जो कुछ भी वो भेजे डिजिग्नेटेड रूटर, वो क्या होगा आपको पता है, वो LSA होगा। वो कौन सा LSA होगा? जो कि पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा। दैट द रीजन इट इज कॉल्ड नेटवर्क LSA। नहीं समझ ये डिजिग्नेटेड राउटर की क्राइटेरिया क्या होती है? मैंने अभी बताया, ये इसके साथ लिखा हुआ है। मैं कलर चेंज करता हूं कि आपको मैं डिफरेंट कलर से दिखा सकूं। ये है जी डिजिग्नेटेड रूटर की हाईएस्ट आईडी। तो हम किसी भी एक्सेस नेटवर्क में आईडीज राउटर्स को असाइन करेंगे, तो जिसको भी हम हाईएस्ट नंबर दे देंगे वो इलेक्ट हो जाएगा एज ए DR, डिजिग्नेटेड रूटर, और जो उसके बाद जिसको हम देंगे वो बन जाएगा बैकअप डिजिग्नेटेड रूटर। अब बात समझ आई मोहसिन? कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आपको जो भी चीज समझ ना आए, हमारा मकसद ये है कि किसी को रोकना नहीं बल्कि अप्रिशिएट करना। जितनी पार्टिसिपेशन बेहतर होगी उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन किसी और का भी होता, उसको भी ये बात पहुंच जाएगी, तो वी अप्रिशिएट, नो वरीज। ओके, मेरी आवाज एटलीस्ट आपको क्लियर आ रही है मोहसिन? ओके, नाइस। तो अब इसका मतलब है कि ये डिजिग्नेटेड रूटर इस पूरे राउटर्स की, यानी अपनी भी, राउटर R1 की भी, राउटर R2 की भी, राउटर R3 की भी इंफॉर्मेशन सबकी तरफ गिराएगा, और हम इसको कहेंगे, एंड आई वांट टू कंटिन्यू। ओके, तो हमें समझ आ गया कि डिजिग्नेटेड रूटर किसे कहते हैं, हमें समझ आ गई कि डिजिग्नेटेड रूटर किसे कहते हैं, हमें समझ आ गई कि बैकअप डिजिग्नेटेड रूटर किसे कहते हैं, हमें समझ आ गई कि इसका टास्क क्या है, ये पूरे नेटवर्क का LSA दूसरों के साथ शेयर करता है, इसलिए इस LSA का नाम है लेयर 2 LSA। उसके बाद थर्ड टाइप 3 LSA, जिसको हम कहते हैं समरी LSA, जिसका नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन LSAs को समझना इज इंपॉर्टेंट। इसलिए ना समझ आए तो पूछें, क्योंकि आगे हम उस वक्त मैं कहूंगा कि जी देखें ये फलाना LSA है और इसकी ये इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में है, फिर हम इस वक्त इन चीजों पे नहीं आना चाहेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। इसलिए मैं कोर्स को शुरू करने से पहले assumption कुछ इसम की है कि आप कई चीजें पहले से पता है जो कि नहीं पता, तो नो वरीज, हमें इन चीजों को समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं चीज एक मल्टी एरिया नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। लेट करें लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा एरिया 0 है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज पॉसिबल हैं। जैसे मैंने कहा था, नंबर 1 बैकअप एरिया, या बैकअप एरिया कह लें, या बैकग्राउंड एरिया कह लें, या इसको एरिया 0 भी कहते हैं, तो एरिया 0 कह लूं, एरिया 0। इसके अलावा स्टैंडर्ड एरिया, अभी हम सिर्फ इन पे रहना चाहते हैं, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि स्टबी एरिया, STUBBY, स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, टोटल स्टबी एरिया। So these are the different type of
total stubby area. So these are the different type of areas, but I am here having the area 0. ठीक है, एरिया 0, और इसके साथ मेरा एक और एरिया लगा हुआ है. मे आई कॉल इट एरिया वट एवर यू वांट टू गिव इट नेम. लेट इट बी एरिया 2. एरिया 2 कोई भी नाम दे सकता हूँ, नो वरीज. इसका मतलब है कि यहाँ पे एक अदद राउटर पड़ा हुआ है जो कि दोनों को मिला रहा है, जो दोनों को मिला रहा है, और एक राउटर इस एरिया 2 के अंदर है. मे आई कॉल इट R2, मे आई कॉल इट R1, या इधर से R1 कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. R1, R2, एक एरिया फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक राउटर है, लाजमी तौर पे दोनों एरियाज को कनेक्ट करने के लिए. और इस राउटर R2 और R3 के दरमियान एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है. एंड देन आई हैव अनदर राउटर हियर R4, एंड हियर इज द लिंक. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये राउटर R1, अब क्योंकि एक एरिया के अंदर है, तो ये अपने एरिया के अंदर के राउटर को अपना LSA देगा. तो जब LSA देगा तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा LSA होगा राउटर R1 का. दैट विल बी दी राउटर LSA. राउटर LSA यानी टाइप 1. अगर मैं यहाँ पे साथ लिख भी दूं, टाइप 1. अब ये इंफॉर्मेशन इस राउटर R2 का नाम है, R2 और R3 का नाम है ABR, एरिया बॉर्डर रूटर. ABR स्टैंड फॉर एरिया बॉर्डर रूटर. क्योंकि ये राउटर R2 और R3 बॉर्डर कर रहे हैं बिटवीन द टू एरियाज, बिटवीन द एरिया 0 एंड एरिया 2, और बिटवीन एरिया में भी एरिया 10, बिटवीन एरिया 0 and area 10. That's the reason they are called as the ABR. Okay, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और लाजमी तौर पे मल्टीपल राउटर्स भी यहाँ हो सकते हैं राउटर एरिया A1, A2 के अंदर. अब क्या करेगा ये राउटर R2, ये LSA रिसीव कर लेगा, और फिर ये एक समरी का क्योंकि ये बॉर्डर रूटर है, ये समरी LSA बनाएगा. ये समरी LSA बनाएगा जो कि टाइप 3 है, जो कि समरी होगी इस पूरे एरिया की, समरी होगी इस पूरे एरिया A2 की, जो कि ये एरिया A0 को देगा. That's the reason it is called summary LSA. This is called as the summary LSA. Now this will reach to the R3. R2 will send to R3. R3 will form again a summary LSA. It will again form a summary of what it has, and it is flooding. जो यहां से आया इसने summary LSA बनाया, summary LSA को आगे flood कर दिया गया. तो this is the example of your summary LSA. इस बात समझ आई? सर तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एज्यूम कर सकता हूं कि आपको समझ आ गए. ठीक है, तो नाउ आई गो टू द नेक्स्ट, व्हिच इज जी अलीना, आपने हैंड रेज किया. सर ये पूछना था कि हमारे पास R3 पे जो समरी LSA है सर, यहाँ पे हमारे पास फ्लडिंग क्यों होती है? ये पहले से क्यों नहीं होती? R3 पे आके फ्लडिंग क्यों हो रही है? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा हर जगह फ्लडिंग है, जो क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता था R2 के में, यहाँ भी फ्लड हुआ. जो चीज यहाँ पे बनी, क्योंकि यहाँ पे पहली दफा बनी है तो इसने आगे दे दी, ठीक है ना. इसने समरी LSA बनाया और यहाँ दे दिया, इसने वही समरी LSA आगे फ्लड कर दिया ताकि एरिया 2 की इंफॉर्मेशन एरिया 10 के पास पहुंच जाए. बात समझ आ रही है?
यानी कि Yes, यहाँ पे sir. लेट करें एक और राउटर भी है लेट इट बी R10, ये भी कनेक्टेड है इस बॉर्डर रूटर के साथ। तो इन सबकी समरी इसने बनाई और समरी R3 की तरफ कर दी। R3 ने वो समरी अपने आप को उसके मुताबिक अपडेट किया। अभी मैंने आपको बताया कि लिंक स्टेट डेटाबेस कैसे बनती है, इसलिए मैंने पहले वो एक्सप्लेन किया। एंड देन फ्लड इट टू द नेक्स्ट रूटर, so that all the routers should have the same picture of the network, the same map of the network, the same topology information of the network. Do you got the answer? Hello everyone, is it fine? Yes, sir. R3 से फिर R2 की तरफ आता है सर ये फ्लड। आप कह रहे हैं कि R3 से R4 की तरफ की बात कर रहे हैं। ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। क्या क्वेश्चन है आपका? जी, क्या क्वेश्चन है मोहसिन? क्या ये पूछना चाहते हैं कि क्या R4 भी इस किस्म के मैसेज भेजेगा? ये क्वेश्चन है आपका? सर ये एरिया 0 पे जो LSA बन गया सर, ये मतलब R3 की तरफ जाता है और R2 दोनों से मल्टीनियसली मतलब जाता है, या फिर R3 को जाता है R3 से R2 की तरफ आता है सर? और याद रखें एक चीज, अच्छा कि आपने पूछ ली और मैंने नहीं बताई थी, एरिया 0 ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। अगर इसका इस साइड पे भी एक एरिया होता, इस साइड पे भी एक इसका एरिया होता, ये उसको भी ये इंफॉर्मेशन जो इसको R2 से समरी LSA मिला है ये उधर भी भेजता, ये R3 को भी भेज जाएगा। ये अगर कोई और राउटर इधर भी है, जितने भी, मिसाल के तौर पे ये आपका एरिया 0 है, ये आपका एरिया 1 है, ये आपका एरिया 2 है, ये आपका एरिया 3 है, ये एरिया 4 है, जो LSA इसको यहाँ पे मिला, it will form a summary LSA and this summary LSA will be sent to all. जी, any question? सही सर। शाबाश। ओके, सो हमें ये भी समझ आ गई, 3 तक हमारी बात पहुंच गई। अब हम 4 पे जाते हैं। अब हम 4 पे जाते हैं। अब हम 4 पे जाते हैं। जी, तो टाइप 4, टाइप 4, लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइप 4 को कहते हैं समरी। टाइप 4 को कहते हैं समरी ASBR LSA। stand for autonomous system, autonomous system border router, border router। तो नई नई टर्मिनोलॉजी है, एब्जॉर्ब करें ताकि हमें आगे पढ़ते वक्त आसानी रहे। What stand for the ASBR? ASBR stand for autonomous system border router। क्या है, कैसे काम करता है? लेट्स एक्सप्लेन। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी नेटवर्क में एक राउटिंग प्रोटोकॉल होना जरूरी नहीं। हो सकता है कुछ हिस्से में रिप हो सकता है किसी एरिया में EIGRP हो सकता है कुछ एरिया में OSPF हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऊपर के ही डायग्राम को आगे लेकर चलता हूं। सॉरी जी, तो ये उसी तरह मेरा एरिया 2, ये उसी तरह मेरा एरिया, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे भी एक राउटर है, लेट इट बी R1, लेट इट बी R2। R2 जो है ये दूसरे एरिया के साथ जो कि एरिया 0 है, बैकअप एरिया है एरिया 0। और यहाँ पे एक और राउटर लगा हुआ है, मे आई कॉल इट R3, और ये एक और एरिया है,
May I call it area 10? May I call it area 10? Ladies and gentlemen, अब assume करो कि राउटर R1 जो है इसके साथ एक राउटर R कुछ भी नाम दे दो, बट दिस राउटर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, and all of these R1 to R4 are running OSPF. No issue. But router R5 is running RIP. तो तौर पे ये अपनी इंफॉर्मेशन R1 को देगा। तो इसका मतलब है कि R1 पे चल रहा है OSPF और इधर से इसको RIP का मिल रहा है। इस राउटर को कहते हैं ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर रूटर। ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर रूटर, जबकि R2 is the ABR, R3 is ABR। समझ आ गई बात की कि जब दो डिफरेंट वो रन करे, उसको हम कहते हैं कि दिस इज ऑटोनमस सिस्टम का ये राउटर है। ये एक हमारे पास कंप्लीट एक ऑटोनमस सिस्टम था, उस ऑटोनमस सिस्टम को कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल फीड कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सर ये किसी भी राउटर के साथ अटैच हो सकता है, मतलब ये राउटर 2 जो AVR है उसके यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी एक राउटर है जो कि EIGRP चला रहा है, दिस R4 will become ASBR then। समझ आ गई ना? किसी भी एरिया के साथ आपका, मिसाल के तौर पे ये जो नेटवर्क था PTCL का था, ये नेटवर्क PTCL का था, ये इसके साथ नयाटेल वाले आ गए। नयाटेल वाले OSPF नहीं इस्तेमाल कर रहे, दे आर यूजिंग RIP, दे आर यूजिंग EIGRP। हम तो ये तो नहीं कह सकते नहीं जी आप यही चेंज करो। So there should be a connectivity between our router and the router of another company, for example. Okay, so yeah, even ये भी लाजमी नहीं कि डिफरेंट कंपनी, ये भी हो सकता है कि आपने अपने ही नेटवर्क के अंदर बाज एरियाज जो है वो SPF पे रखे हुए हैं, बाज जो है EIGRP पे रखे हैं, बाज जो है RIP पे रखे हैं। Nobody stops you। तो अगर हम यहाँ तक समझ गए तो वी मूव फर्दर, और हमने कहा कि जब ये R1 की इंफॉर्मेशन, सॉरी R5 की इंफॉर्मेशन R1 के पास आएगी, it has to redistribute this to R2, it has to go further, So in this case R2 will receive the router LSA। तो यहाँ पे क्या वो बनेगा, यहाँ पे तो बनेगा type 1 which is the router LSA, type 1। This will go to the ABR and ABR will form a type 4 which is the summary, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसको किससे मिली है, ASBR से मिली है। तो ये इसको हम अब नाम देंगे summary ASBR LSA, summary, या मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ type 4। और ये type 4 इंफॉर्मेशन R3 जो है वो R4 की तरफ भेज देगा, तो type 4 LSA यहाँ पर भी भेजा जाएगा। तो सिर्फ फर्क ये है कि अब इसमें इंफॉर्मेशन किसकी जा रही है, इसकी जा रही है जो यहाँ से लर्न की गई। In other words, उसको मैं LSA नहीं कहूंगा, LSA is the terminology of the link state routing protocol. RIP is, is not a link state routing protocol. It is a distance vector routing protocol. आ समझ आ गई? Hello, can I proceed? Yes sir। Sir, yes much। Okay. Then comes a new page, which is type 5. क्या इन पेजेस की जरूरत होती है आप लोगों को या जरूरत नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्डिंग इज एनफ? नहीं सर, ठीक है। तो टाइप 5
जिसको कहते हैं एटोनमस सिस्टम। पहले वाले को हमने एटोनमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA, एटोनमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA, दैट इज द नेम ऑफ द टाइप 5। ठीक, सिर्फ फर्क ये है, जो अभी हमने किया है एग्जैक्टली वही चीज है, मां सिवाय only one thing, this is your route area 1, this is your area 0, this is your area 10, here is the router R1, and here this router is connected to a router which is running red, for example, and यहाँ पे जो भी इस इंटरफेस का IP है या इस नेटवर्क का IP है, let it be 10.10.10.10 slash something, whatever you want, slash 24, slash whatever, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन भी इस तक पास की जाती है, एंड ये फिर उसी तरह एग्जैक्टली टाइप 1। अब ये क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी राउट इस बॉर्डर ABR को मिली है, इस LSA का नाम रख दिया गया एटोनमस सिस्टम, इस LSA का नाम रख दिया गया autonomous system external LSA, and the same will go from here to this router extra, which is type 5. So just the difference between 4 and 5 is this value. This is shared with all. Okay? So this is the type 5. Type 6 का नाम तो हमें पता है कि मल्टीकास्ट OSPF LSA, but this is not supported by Cisco, not supported by many other vendors as well. That's the reason we are not interested to read it, कि हमारे सिस्को के प्लेटफॉर्म पे ये नहीं है, सिस्को के प्लेटफॉर्म पे ये नहीं है। Then comes the type 7, ठीक, and the type 7 is not so stubby area, जिसको शॉर्ट में NSSA कहते हैं, not so stubby area LSA। अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टब नेटवर्क क्या कहते हैं, स्टबी का क्या मतलब है, टोटल स्टबी का क्या मतलब है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कंफिगर करेंगे। डेफिनेटली विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, लेकिन नाम तो कम से कम याद हो कि ये कौन सा LSA है, फिर हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं, नो इश्यू। ठीक, ओके। Sorry, I'm not feeling well, but we can continue, no problem. तो नॉट सो अगर ये इसको इस एरिया 1 को फॉर एग्जांपल जो भी नाम दो, एरिया 0, एरिया 10, इस एरिया को अगर आप कॉन्फ़िगर कर दें कि ये एरिया NSSA है, कैसे करते हैं वो बाद में बताऊंगा, डिफाइन करूंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको हमने अगर नॉन सो स्टबी कह दिया है तो क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो अगर ये तो इस केस में ये टाइप 7 का LSA भेजेगा, टाइप ये राउटर R1 कौन सा भेजेगा, टाइप 7 का LSA। नॉट सो स्टबी एरिया की तरफ से ये LSA आया है तो ये टाइप 7 LSA होगा। और क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर यहाँ एक रूटर है, क्योंकि ये तो NSA नहीं है, ये सिर्फ NSSA है, ये सिर्फ NSSA है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो क्या होगा, ये इस टाइप 7 को टाइप 5 में कन्वर्ट करके राउटर R2 ABR राउटर R2 आगे भेज देगा।
टूवर्ड्स R1 R2 R3 के, और R3 जो है वो इसको R4 की तरफ टाइप 5 के तौर पे ही आगे भेज देगा। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है, थोड़े से एरियाज की एक्सप्लेनेशन है। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेता हूं और फिर आपको इंजॉय करने के लिए टाइम देता हूं। और वो टर्म है, हो सकता है कि आपने सुनी हो, आपने सुना हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होगा हमारे इस, जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन और इन तरह की तरफ आएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको तो ये पता है कि आईपी एड्रेस होता है, आपको पता है कि सबनेट मास्क होता है, आपको पता है कि आईपी एड्रेस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है कि सबनेट मास्क किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये तो पता है ना, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मोहसिन, नासिर, ठीक है। अगर नहीं है तो आई कंटिन्यू। अब एक और टर्म बास बुक्स में हमें नजर आती है, एंड दैट इज वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क, तो ये है मेरा टॉपिक। क्योंकि आपने कहा आईपी मत समझाओ, हमें आता है, आपने कहा सबनेट मास्क मत समझाओ, हमें आता है, और आप कहना, ये जब आपने कहा कि हमें आता है, तो इसका मतलब है कि आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि जब आईपी एड्रेस को हम एंड करते हैं सबनेट मास्क के साथ, तो एंड रिजल्ट जो आता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस। क्यों जी, गलत कह रहा हूं? नो सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, कि अगर आपको समझ आ गई तो इसमें कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है। यही तो हम कहते हैं कि जिन्होंने आईटीएन पढ़ा होता है उनके लिए फिर इस किस्म के कोर्सेज इजी होते हैं, क्योंकि उनको क्लियर है। ना भी क्लियर हो तो आई कैन मेक इट क्लियर अगेन हियर, नो इशू। किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई मसला है, इट विल बी नाइस कि हम उसको क्लियर कर लें। अब वाइल्ड कार्ड क्या चीज है? ये है जनाब कि अगर आपका कोई भी सबनेट मास्क है, मिसाल के तौर पे कोई भी आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इनिशियली सिंपल सा ले लेता हूं, लेट इट बी 0, दिस इज द सबनेट मास्क। Ladies and gentlemen, what need to, if you want to convert the subnet mask into a wild card mask, what need to be done? Just minus, subtract, which means it, this subnet mask from this one. इससे इस सबनेट मास्क को माइनस कर लो, 255.255.255.0। क्या आंसर आ जाएगा? 0.0.0.255। दिस इज दी, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क for the network whose subnet mask was this. कुछ बात समझ आई? जी सर। सर ये यूज किधर होगा? That is a good question. Ladies and gentlemen, you will see this wild mask used in OSPF, EIGRP, in the access list, ACL, in your firewalls, AASA, and many things like this. ठीक है? जी सर। आसान कहने के लिए एक दफा मुझे और पेज चाहिए होगा, शायद आज हमने पेज ज्यादा भर दिए हैं। ओके,
आसान मिसाल के तौर पे अगर मेरा सबनेट मास्क है 255.255.255.248, चलें आप लोगों के लिए सवाल हो गया, बताओ इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? सर 7? इसको 0.0.0.7, इसको अगर मैं एक तरीका तो ये बताया, असल में है क्या, ये इसका मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपका सबनेट मास्क ये था, इसका मतलब है कि दैट इज इक्वल टू 8 ones 3 4 5 6 7 8 dot, then 1 2 3 4 5 6 7 8 dot, 1 2 3 4 5 6 7 8 dot, and the last one is 248, कितना कम है 7, तो इसका मतलब है कि 4 1 4 1 to 4, इसका मतलब है कि 3, इसका मतलब है कि 5 ones 1 2 3 4 5 0 0 0, यही है ना, ये है आपका सबनेट मास्क। just flip 1 to 0 and 0 to 1, you will get the wild card mask। 0.0 ये all ones हैं, all zeros, all ones हैं, all zeros, all zeros हैं, all ones हैं, sorry my god, चलिए कोई बात नहीं, all zeros हैं, all ones हैं, all zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 dot, 5 ones हैं तो 5 zeros 1 2 3 4 5 and 3 1 zeros हैं, 3 ones, which is exactly equal to this one value, this one which is 0.0.0.7। आई कोई बात समझ में? So this is your subnet mask, this is your subnet mask, and this is your wildcard mask। अब आता हूं मकसद की तरफ, क्यों पढ़ना चाहता हूं। Ladies and gentlemen, this will give me, जैसे अभी आपने कहा कि if I take an IP and I AND it with subnet mask, it provides me the network address, but routers, firewalls, ACLs, उनको नेटवर्क एड्रेस से तो काम नहीं है, उनको कुछ और चाहिए। And what it is, take your IP, or it with the wildcard, and this will give you a range of IPs। शाबाश। बहुत जगहों पे देखोगे, जो मैंने अभी तक ऊपर जितनी बात की है, ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर जगहों पे यहाँ पे बात रोक दी जाती है कि बस जी 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। OSPF में इस्तेमाल होता है, EIGRP में होता है, ACL में होता है, ASA में होता है, बस यहाँ तक की बात। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं जी। अगर मेरा कोई भी आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा 192.168.248.96 एंड 7 है, तो इसका मतलब है कि इसका 255.255.255 7 है, तो 7 निकाल दूं तो 248।
ये है मेरा आईपी, ये है मेरा सबनेट मास्क, और ये है मेरा वाइल्ड कार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड करो इन दोनों को। तो इन तीनों के लिए तो मैं नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि यही वैल्यूज आ जाएंगी। यस, it will be 192.168 dot यानी ending of IP and subnet mask, ऐसा मैं लिख लेता हूं। 192.168.248 96 का मुझे नहीं पता, तो इट इज 64 128 64 में 32 करे तो 96 32 सॉरी अगर मैं 90 क्या है 64 प्लस 32 एंड इट इज 6 and 9, वेरी राइट, 96। और इसका मतलब है कि अगले 5 बिट्स जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, और 248 इज 5 ones 1 2 3 4 5 एंड 0 0 0। और अगर इसको हम कर दें एंडिंग, और एंडिंग का आपको पता है कि 0101 0011, it will be result will be 0 and the rest is 1. This is the end. ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सर ये और नहीं कर दिया आपने? और कर दिया है, फिर एंड कर देते हैं। मुझे इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मुझे याद करवा दें, एंड इज मल्टीप्लाइंग, या तो 0 0 0 1, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, 0 1 1 एंड देन ऑल जीरोस, 1 2 3 4 5। इवन अगर ये 96 की बजाय 100 होता, चले इवन ये 100 होता, तो 100 होता तो क्या हो जाता, 1 2 4, ये बिट 1 हो जाती, तो फिर भी यही आंसर आता। इसका मतलब है कि हमारा अगर ये आईपी है तो हमारा नेटवर्क का एड्रेस है 192.168.248.96। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। अब क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम इसी एड्रेस को 192 which is equal to 11 and 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, 168 is आप करके देख सकते हो 10101 and 000 dot 248, and 248 is equivalent to 5 ones, 1 2 3 4 5 3 zeros, and the remaining 900 whatever you want to take 0, or even you take the network address, but whatever you want, either the network address or which is an address, no issue। तो इसका क्या आया था हमारा 011 00 100 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल जी ठीक है। अब इसको मैं करता हूं क्या, एंड विद दी वाइल्ड कार्ड मास्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 1 2 3 4 and the last is 7, इसका मतलब 1 1 1 1 2 3 4 5। और करना मैं चाहता हूं आईपी और वाइल्ड कार्ड मास्क है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि 0101 0011 और the OR is 0111। इसका मतलब है कि अगर तमाम जीरो हो तो तब ये 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 ones हैं तो 2 ones आ जाएंगे और बाकी 6 zeros 1 2 3 4 5 6 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा
1010100, जहां मैं गलती करूं मुझे बता दीजिएगा। 1 इसका आ जाएगा 5 ones, 1 2 3 4 5 and 3 zeros। अब मजा यहाँ पे सिर्फ है कि यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1 0 0 and 1 1 1। क्या बना? 192.168.248.64 plus 32 96 96 plus 127 and it becomes 3103। जहां भी गलती हो मुझे कहो। 103। So ladies and gentlemen, you know this is the network address and this is the one of the address in the network. So it give me a range from 96, which is the first address, up to 103. So if I give an IP and the wildcard mask, it can find a range of IP to which some action can be taken. मिसाल के तौर पे अगर मिसाल चाहिए तो अगेन आई नीड अनदर पेज। देन आज तो माशाल्लाह पेजेस का बरसात है जी। इसकी मिसाल के तौर पे ये मेरी इंटरफेस है और इसके आगे एक नेटवर्क है। चलें टाइम भी हम कम है